like a teenager. Basically, how he grew up to be what he was. So, we are going to introduce the kid who are doing the Young Vivekanand play, what the part of the Young Vivekanand's play. No, one by one. This is Aditya. He is playing the Young Vivekananda. Namaste. This is O. He is the brother of Vivekananda. Namaste. He is the watchman because, as all of you know, that Vivekananda's family was a very rich family. So they had a watchman. So he is our watchman. Hi, this is Rohan. He is playing Sadhu Baba in the Vivekananda play, who is going to give a very good teaching to Vivekananda. This is Ritika. She is playing a sister of Vivekananda, Harmohini, and she is a part of the play. This is Vishwa. She is also playing the sister of Vivekananda, Shwarna Mohini. This is Molly. She is playing the mother of young Vivekananda. Isn't she beautiful? And she is Muktira. This is the setting of Vivekananda's house when Vivekananda was almost 9 years old. I'm going to say in Hindi, hopefully everybody will understand, right? So, कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त जी का आलीशान मकान। वो कलकत्ते के प्रसिद्ध वकील थे। घर के बाहर कोचवान घोड़े की बग्गी लिए खड़ा था। बच्चे घर में बैठ के खेल रहे थे। घर का बड़ा बेटा जिनका निकनेम बिले था, वो 6 वर्ष का था और अपने गुस्से के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। उसका गुस्सा पूरे घर को हिलाकर रख देता था। बिले की मां भुवनेश्वरी देवी रसोई में खाना बनाने के प्रबंध में व्यस्त हैं। बड़ी बहनें हरमोहिनी, स्वर्ण मोहिनी और उनकी एक दोस्त अपने घर में गुड़ियों से खेल रही थी। बिले क्या करे हो? हमारे गुड़ियों का घर टूट जाएगा। मोती क्या, मैं तो वैसे ही भागूंगा। तपस्या की थी। तो क्या प्रहलाद मैंने कहा, तू तो बड़ा बदमाश है, पूरा राक्षस है।
फिर तो बड़ा बेटा है, बाबा की जैसे वकील बनेगा, जज बनेगा। जो हाँ जी, बाहर एक सफर बाबा आते Come closer, come closer, come closer. ये रोज साधु का रात ये आपके लिए है। साधुगढ़ के मालिक हो? नहीं, मालिक तो बाबा है। दूसरों की वस्तु दान में लेना दान नहीं है। अपनी कोई वस्तु हो तो मुझे दो। दूसरों की वस्तु दान में देना दान नहीं है। अपनी कोई वस्तु हो तो मुझे दो। मेरे पास ये टोपी है, आप ये ले लो। परंतु थामन भी ले लो। दान, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं लेते हैं। धोती कहाँ है? मेरे साधु बाबा को दे दी। इतनी कीमती धोती एक मुट्ठी चावल से भी साधु खुश हो जाते हैं। दान में तो कीमती चीज ही देते हैं, घर का कपड़ा नहीं देते हैं। तो क्या मेरे हाथ के कंगन भी दे दोगे? हाँ, दे दोगे, लेकिन एक साधु बाबा के लिए सोने के कंगन का क्या मोल? मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। रुको, बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Hope you like it. They work really hard. You believe it? They do work hard. Actually, we just wanted to show that even though Vivekananda was very young that time, but at that age also he started having those feelings about God, about what is important in the life and what is not. Like the money doesn't make any difference. What you are giving, when you are giving, you should give your best. And it continues when he grew up. The other part of the play, when he's like a 13-14 years old. So hope you're gonna like it. नमस्कार, मेरा नाम जया अग्रवाल है एंड हम लोग हमारे बच्चे नरेंद्र के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं जब विवेकानंद टीनेजर थे। इन बच्चों ने अपने आप, रेणु गुप्ता ने ये प्ले लिखा था और इन बच्चों ने इसे अपनी तरह से डेवलप किया है, चेंजेस करे हैं एंड इनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद दीस 4 kids. They came up with very good ideas and they learned a lot about Vivekananda. They did research during the play and they made this play better, at least in my opinion. So I would like to introduce these amazing kids. First we have Likhit. Likhit is Narendra, Swami Vivekananda's teenager version, and he is definitely like him. Then we have Thakur. Doesn't he look good? Fantastic. Ramkrishna Paramhans. This is Mihir. And we have Harsh. He is Vivekananda's very good friend, Ramchand. Then we have Arushi. Arushi is Naren's mother. And here we have everyone. You too.
आप लोगों ने अभी देखा कैसे बच्चों ने विवेकानंद का यंगर वर्जन किया when he was a small kid. जैसे जैसे साल बीतते गए नरेंद्र के मन में भगवान को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। उनके मन में बार बार यही प्रश्न आते थे, क्या भगवान सचमुच होते हैं? क्या किसी ने भगवान को देखा है? भगवान कैसे दिखते हैं? अब हमारा प्ले उनकी भगवान को जानने की यात्रा पर आधारित है। 2 दिन से नरेंद्र पागलों की भांति भटक रहे हैं। वे सबसे यही प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? सभी लोग हंसकर उनकी तरफ देखते हैं। क्या दादी ने नानी भी भगवान को देखा है? क्या भागवत से बात करता है? किसने भगवान को देखा है? तो पूजा क्यों करते हो? इसका मतलब है भगवान नहीं होते हैं। बचपन में बोलता था प्रहलाद जैसे तत्पर का, अब बोलता है भगवान नहीं होते हैं। नरेंद्र के बचपन के दोस्त रामचंद्र ठाकुर से मिलने जा रहे थे। ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस। रामचंद्र ने ठाकुर से मिलने के लिए गाड़ी मंगवाई थी। जब उन्होंने गाड़ी मंगवाई तो उन्होंने सोचा कि चलो नरेंद्र से पूछ लें कि अगर वो ठाकुर से मिलने जाना पसंद करेंगे। नरेंद्र, मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ। गाड़ी बुलवाई है, तुम भी साथ चलो। ठाकुर तो तुम्हें हमेशा याद करते हैं। मैं तुम्हारे घर ही तो उनसे मिला था। मुझे तो थोड़े से पागल से लगते हैं। कैसी नशीली आंखों से मुझे देख रहे थे। ठाकुर वो नहीं है जो तुम्हें देखते हैं। चलो तो सही। अच्छा चलो चलते हैं। मुझे उनसे एक प्रश्न भी पूछना है। क्या तुम्हारे ठाकुर ने भगवान को देखा है? चलो, वही तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। ठाकुर यानी रामकृष्ण परमहंस एक जगह बैठे हैं और उनके आसपास उनके शिष्यगण बैठे हैं। ठाकुर किसी बात पर हंस रहे हैं और जब उन्होंने नरेंद्र को आते हुए देखा, नरेंद्र को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। इतने दिन से कहा था रे? बस पर रहने गया था। आपने भगवान को देखा है? चल बाहर चलते हैं। ठाकुर नरेंद्र का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। बता क्या पूछना है? क्या आपने कभी भगवान को साफ साफ देखा है? हाँ, मैंने उन्हें माँ के रूप में देखता है। रोज ही देखता हूँ। मंदिर वाली माँ भगवान ही तो है। क्या सच में? हाँ, जैसे तुम्हारा देखता हूँ। क्या आपने दर्शन करने वाला है? हाँ, दर्शन करने हैं ठाकुर। चल अपनी आंखें बंद करो। ठाकुर ने अपना हाथ नरेंद्र के कंधे पर रखा और नरेंद्र पूरी तरह समाधि में चले गए। 2 घंटे तक अचल बैठे रहे। सभी मित्र आ गए। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि नरेंद्र के साथ क्या हो रहा है। नरेंद्र को संभाल कर ले जाना, एक तो दिन जाना। नरेंद्र शराबियों की तरह लड़खड़ा कर चल रहे थे। रामचंद्र नरेंद्र को सहारा देकर बाहर आए। ये कैसा अनुभव हुआ नरेंद्र? दादा, ठाकुर ने भगवान को देखा है। Later, Swami Vivekananda imparted some of his life lesson about God to his students. When I asked God for happiness, He showed me some unhappy people. When I asked God for brains, He gave me puzzles to solve. When I asked God for wealth, He showed me how to work hard. When I asked God for strength, He gave me difficult situations to face. God gave me everything. Everything I needed, but Nothing I wanted.
those are some of the things kids really liked about Vivekananda's teaching, and so they wanted to share with everyone. I hope you enjoyed the play, and I'd like to thank you and